Hi everyone, welcome back to Super Kalam. I am your mentor and teacher Arpita Sharma, and as prelims is approaching, I understand the level of anxiety and the level of confusion that might increase in the next 2 to 3 months. And the remaining months which are left, today is what? December? ठीक है, December हो गया आज 14th December. December is almost going to get over in next few days, right? समझ लो आधा दिसंबर तो गया अपना. So we have Jan, Feb, March, and April. 4 months are left. And we will take 3 months at max. हम 4 months सोचेंगे नहीं, एक महीना तो रिवीजन के में ही निकल जाएगा, right? So we'll consider that 3 months are with us. Okay, एक महीने का वो बफर अलग से हम लेकर चलेंगे, but 3 months हमारे पास है. And in these 3 months, we have to make sure that our focus shifts towards prelims slightly. Okay, धीरे धीरे gradually it will completely shift towards prelims, but हमको ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा सा prelims orientation अपने revision में लेकर आए, ठीक है? And the first and foremost thing is analyzing the PYQs, solving the PYQs when it comes to revising for prelims. Because PYQs को अगर आपने last के month के लिए रखा, then you are making the biggest blunder that you can make in your preparation. So many students are asking, ma'am, okay, chalo, we will analyze the PYQs, but how to do that? So I'm going to take into account the last few years, previous year questions, and I'm going to help you understand how you can analyze them while you are revising. Because even if revision आपकी syllabus पूरा complete नहीं हुआ है, but if you are revising through PYQs, then आपका syllabus में confidence बढ़ जाएगा. Because previous year questions are the doorway through which you can understand UPSC's mind. यही रास्ता है यूपीएससी को समझने का, और कोई रास्ता नहीं है. You give test series, you give mocks to enhance your speed, your accuracy level, your understanding of the questions, of the concepts, but you solve previous year questions to increase or enhance your understanding of UPSC's actual mindset. So we are going to do in-depth analysis, which will involve understanding the exam pattern, understanding how UPSC is orienting itself towards the syllabus, and understanding the types of questions or the pattern of questions and how you can approach them. ठीक है, शुरू करें आज का सेशन. So there are 4 steps which are involved in understanding the previous year questions. If you have your register, please keep it on your side and please start jotting down the anecdotes from this session. अब अगर हमें पैटर्न समझना है क्वेश्चन का, if we need to understand the pattern of the PYQs, we need to understand what are the type of questions which are usually asked in prelims. We have factual questions, we have conceptual questions, we have analytical questions, and we have assertion reasoning questions. ठीक है, ये तो हम सबको पता है. फैक्चुअल मीन्स डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं, एनी रिवोल्ट, एनी इवेंट विच हैपेंड, एनी लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चन, बुक ऑथर एटसेट्रा, फैक्चुअल है बिल्कुल. देन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल है. दे आर टेस्टिंग हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. अ क्वेश्चन ऑन volcano, a question on, let's say, earthquake, a question on a particular missiles functioning, etc. These are all conceptual question. कोई वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आया, conceptual. RNA, DNA, conceptual. Analytical questions आ जाते हैं. Then analytical question में you have to make an analysis and you have to use the elimination technique over here. यहीं पर आपकी सारी elimination technique का game strong होता है. And we have assertion reasoning. There are 2 statements which are given, statement 1 and statement 2. They will ask you if statement 2 is the correct explanation of statement 1, if statement 1 is the correct explanation of statement 2, etc. तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगी, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड. And after, even after this session, if you have any other doubt that you want me to address or solve for you, yahi time hai. Utilize this 1 week ka period to ask as many questions as you can so that I can solve them. Okay, let's start. We are first starting with the factual question. ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आई एम यूजिंग द PYQs इटसेल्फ. मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं रही हूँ. नाउ दिस क्वेश्चन बेसिकली टॉक्ड अबाउट इंडियाज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाई इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. With reference to India's projects, projects on connectivity. So underline here, you are getting a hint of how UPSC thinks. In PIB, in the Hindu newspaper, or if you are reading the Indian Express newspaper, or if you are currently referring to Super Kalam's magazine, you will find that it covers
all these sources, they cover different kind of projects and schemes which India is working on, whether it is defense, economic, infrastructural, etc. तो आपको वो सारे स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाकर रिवाइज करना है उसको। वेन एवर यू आर रीडिंग द न्यूज पेपर और करंट अफेयर्स, मेक श्योर यू अप्रोच दिस वे। दैट इज वाई PYQs आर इंपॉर्टेंट। वो आपको बताते हैं कि स्कीम्स को भी कैसे क्लासिफाई करके पढ़ना है। So, with reference to India's projects on connectivity, consider the following statements. East-West corridor under Golden Quadrilateral project. This Golden Quadrilateral project was in PIB also. It was in the Hindu newspaper also. ठीक है, तो एक तो हमें करंट अफेयर की हिंट यहाँ से मिल गई। Connects Dibrugarh and Surat. Then next is Trilateral Highway. Again it was in PIB. Then next is Bangladesh, China, India, Myanmar Economic Corridor. It was both in the Hindu newspaper and the Indian Express newspaper. Okay. So now, what do you think? Can you apply guesswork over here? No. That is why it's a factual question. यहाँ पर guesswork आप लगा ही नहीं सकते। ये पूरा प्रॉपर फैक्ट बेस्ड है। इफ यू हैव स्टडीड अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आर द स्टेट्स और व्हाट आर दी रीजन्स और कंट्रीज इन्वॉल्व, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। तो ये होते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते एंड सी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, वैसे भी नहीं कर सकते। हाउ मेनी 2023 में भी ये पैटर्न देखने को मिला था। मेनी पीपल वर सेइंग only in 2024 up the pattern change happened. No, it has been happening since 2021 itself. This is the new way in which UPSC is now asking questions. How many of the above statements are correct? Which of the above नहीं पूछा, how many पूछा। यहाँ पर आप तुक्का नहीं लगा सकते। Whenever how many of the above are correct, वहां पर थोड़ा सा factual information होना आपके दिमाग में जरूरी है। That you can do if GS पेपर 3 के आपने इस तरीके से schemes, प्रोजेक्ट्स, प्लान्स, इस तरीके से अगर करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं, देन यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं हो पाएगा। इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हियर। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू आर हैविंग दिस डाउट, मैम हाउ टू एनहांस दिस फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मेक नोट्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। करंट अफेयर से जब नोट्स बनेंगे आपके, या वेन एवर यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स, कैटेगराइज इट जस्ट लाइक वी डू इन आर सुपर कलाम्स मैगजीन। डैशबोर्ड में जाके आपको दिख जाएगा सुपर कलाम की मैगजीन का लिंक, भी मैंने दिया हुआ है इन द कमेंट्स, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो देयर स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, प्लान्स अगर आप सेपरेटली रिवाइज कर रहे हो, एंड रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू थिंक कि रिवीजन के बिना बता दो कैसे याद रखें, तो वो नहीं हो सकता। एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, मेहनत तो डालनी पड़ेगी। बिना हार्डवर्क के तो आई कांट इवन टेल यू कि यू कैन क्लियर एनी एग्जाम। हार्डवर्क इज नीडेड इवन इन जॉब, बिजनेस और एग्जाम। हर जगह मेहनत की जरूरत है। तो रिवीजन इज हार्डवर्क ओनली, इट इज अ सिनोनिमस, ठीक है, हार्डवर्क का, ये याद रखना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया विच आई शोड यू, वेयर एलिमिनेशन मेथड विल नॉट वर्क। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब यहाँ योर conceptual अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू सॉल्व इट। Now here, this question talks about constitutional efficiency. Read the question very carefully because यहाँ पर statement assertion भी हो जाता है। Statement 1 is saying Supreme Court of India has held in some judgments that reservation policies made under Article 16 subsection 4 of Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement 2 is talking about Article 335, इसी का linkage हो गया यहाँ पर। What Article 335 is? नाउ आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां पर इफ योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज क्लियर, देन यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इफ दिस स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 और नॉट। अगर आपका कंसेप्ट आर्टिकल 335 के ऊपर स्ट्रांग नहीं है, तो आप यहां पर क्या करोगे, गेस वर्क करने लगोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ अ ह्यूमन ब्रेन थिंक्स व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन। इफ you have never read about Article 335, or if your conceptual understanding of Article 16 is weak, then you will try to apply guess, which 99.99% of time will fail. वो गलत ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपको ये मेक श्योर करना है, whatever in polity or even in geography, whatever key terms you are studying, formation of cyclone, whatever process related things you are studying, a particular article, a particular section, these are process related things, amendments, process related things। अगर आप process relate, how bill is passed, process related thing है। how prime minister or president is appointed, process related thing है। how volcanism happens,
एक्सोजेनिक फैक्टर्स, एंडोजेनिक फैक्टर्स। तो अगर आप प्रोसेस समझ गए, वो स्टोरी इंटरलिंकेज समझ गए, देन यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजीली और यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन इट वेरी इजीली। बट इफ यू आर इन्वॉल्व इन रोट लर्निंग ऑफ द प्रोसेसेस इटसेल्फ, पहले ये पहले ये पहले ये, वाई नहीं पूछ रहे हो, द मेन पॉइंट इज वाई। If you're not asking the why, then you might end up solving the conceptual questions in a wrong way. तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एफिशिएंसी। नाउ आई शो यू द थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एनालिटिकल क्वेश्चन में मिसाइल, वैक्सीन एटसेट्रा, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, सी साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, यहां पर थोड़ा सा एनालिटिकल एस्पेक्ट यूज होता है। यू हैव टू थिंक, you have to churn your brain to answer such questions. Here also, if you see, it is a question which is differentiating between ballistic versus cruise missiles. Ballistic missile और cruise missile में क्या difference है? Because two statements are given. One is on ballistic missile, one is on cruise missile. If you are rote learning about it, then you might end up marking this question as wrong. मतलब marking it in a wrong way. But if you, when you are preparing the types of missiles, जब आप किसी मिसाइल के बारे में पढ़ते हो, you are further understanding कि what is the difference between these two kinds of missiles. Then in a way your mind will start thinking analytically. आप बाल की खाल निकालने वाली बात होती है ना, वैसे सोचना होता है साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, नॉट इन हिस्ट्री। ठीक है, सो हियर अगेन दिस क्वेश्चन, two kind of missiles are explained. If you have understood the difference between the two, then आप इस तरीके के extreme questions को भी solve कर सकते हो easily. Then we have the last kind of question, which is assertion reasoning. I told you na, wherever any kind of concept, deeper understanding of a concept is required. For example, inflation हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, तो इकोनॉमी में हमेशा याद रखना, एंड इवन नॉट जस्ट इन इकोनॉमी, इन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, दीज आर द थ्री सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, वेयर स्टेटमेंट असर्शन के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट दैट वे। एंड आई टोल्ड यू स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज गिवन। मैंने आपको बताया था ना कि एक ट्रिक, ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बीच में ना बिकॉज ऐड करना and then try to read the statements. Statement 1, in the post pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes at because. Statement 2, central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Now you will be in a position to answer if statement 1 is the correct explanation of statement 2 or not, or if both the statements are correct or not. अगेन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी एनालिटिकल होते हैं कुछ एस्पेक्ट तक नेचर में। स्टेटमेंट वन काफी एनालिटिकल आता है, हियर आल्सो स्टेटमेंट वन इज क्वाइट एनालिटिकल। इट इज नॉट वेरी फैक्चुअल, ये फैक्चुअल नहीं है बिल्कुल भी, इट इज एनालिटिकल एज वेल एज यहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे प्रोसेस को समझना है, अगर बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस, इन द सिलेबस इट इज clearly written in economy monetary policy, you have to study the monetary policy tools. So if you are studying that keyword in the syllabus properly, preparing notes properly, analyzing the topic properly, then you are in a position to answer this question very easily. तो ये मैंने आपको बताए हैं चार टाइप्स अभी। आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट फोर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू डिसइंटीग्रेट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग पीवाईक्यूज। तो आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, बिकॉज देन after doing that you will understand your strengths. Are you strong in factual questions? Because some students are very strong in memorizing, तो उनका फैक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हिट रेट होता है वो हाई होता है। वी हैव टू फोकस ऑन आवर हिट रेट, वी डोंट हैव टू सॉल्व द एंटायर पेपर। नो, अगर आपको लग रहा है 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आने होते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा कभी नहीं करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड हिट रेट कितना अचीव कर सकते हो। 101, कुछ बच्चे 101 टारगेट लेकर चलते हैं, इतने मार्क्स लेकर आने ही हैं, देन वो कहीं ना कहीं कट ऑफ के पास आ जाते हैं। कुछ बच्चे 160 का टारगेट लेकर चलते हैं, राइट, कि भाई 160 का टारगेट रखेंगे तब जाकर करीब तकरीबन हम कट ऑफ के पास पहुंचेंगे। तो इस तरीके से टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज आर रिक्वायर्ड। अगेन सम स्टूडेंट्स आर गुड एट एनालिटिकल and conceptual based questions, solving these kind of questions. Some students are only very highly good at solving factual and assertion reasoning kind of questions. तो इस तरीके से आपको PYQs को whenever you are analyzing
एनालाइज इन विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस योर हिट रेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये आपको मॉक टेस्ट के थ्रू भी यही एनालाइज करना होता है। मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग, मैम इन मॉक टेस्ट ऑल्सो हाउ टू एनालाइज अ परफॉर्मेंस। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। जैसे कि मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज आर सुपर कलाम्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ओके, यहाँ पर ना अटेम्प्ट सैम्पल टेस्ट का ऑप्शन भी है। यू क्लिक ओवर हियर। नाउ दैट यू ऑल नो दैट चैट, आर सुपर कलाम चैट एंड डैशबोर्ड हैज बीन मर्ज्ड। ट्राई भी करना खुद से भी, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, वी हैव सॉल्व दिस टेस्ट। अब आप यहाँ देखोगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस सैम्पल टेस्ट ऑन द इन द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑफ सुपर कलाम, now I can understand there are different types of question. Obviously the answers also contain the mind maps and diagrams. अब इस सब टॉपिक के अंदर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। अगेन इट इज फैक्चुअल क्वेश्चन। सो हियर आई, आफ्टर सॉल्विंग द टेस्ट, I can easily understand which questions I have marked as wrong. That means किन काइंड ऑफ क्वेश्चंस में मैं लैक कर रही हूँ, वेदर आई एम वीक इन फैक्चुअल, वेदर आई एम वीक इन स्टेटमेंट असर्शन, और एम आई वीक इन द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो यहां से मुझे समझ आ जाती है बात। इस तरीके से आपको एनालाइज करना होता है। टेस्ट एनालिसिस में जाओगे यहाँ पर टॉप पे, तो यहाँ मुझे पता चलेगा मैं किस में वीक हूँ, किस में मैं लैक कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। So this is how you need to analyze PYQs and even your mock test. Common theme समझनी है आपको। Any test, whether it is PYQ, whether it is your mock test, any test contains core subjects. Current affairs तो होता ही है, environment, geography, eco, history, polity, these are the core subjects which are in a part of the PYQs. And this is the step by step approach to the analysis of the PYQs. कैसे analysis करना है, पहली बात तो identify करो repeated themes क्या है। सबसे पहले हमने types of question निकाल लिए, 4 types of questions. Then I will identify step 1, what are the type of questions which are getting repeated. For example, constitutional government question has been repeated 4 times continuously in prelims. Then I will link the question to syllabus कि भाई if this question is mainly regarded to geography, or this question is related to economy, or this question is related to defense, not economy but defense, ballistic missile वाला हमने question पढ़ा था, or is it related to science and tech. Then try to understand how questions are framed. यहाँ पर हमने समझा ना कैसे question बने हैं assertion reasoning के। See, central bank all of you study, post pandemic का पास्ट आपने सबने पढ़ा है कि व्हाट हैपेंड पोस्ट पैंडेमिक इन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट आफ्टर स्टडिंग दैट, हाउ यूपीएससी इज थिंकिंग टू फ्रेम क्वेश्चन, ये आपको पीवाईक्यूज बताएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी सब पढ़ते हैं, व्हाट इज सीआरआर, इन्फ्लेशन, व्हाट इज रेपो रेट एटसेट्रा, बट हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम रेपो रेट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू अप्रोच दैट टॉपिक। वरना आप एक्सेस एक्स्ट्रा में सब कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना। एंड देन प्रैक्टिस तो करना ही करना है आपको। वी कैन नॉट अवॉइड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। वो तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको सुपर कलाम की टेस्ट सीरीज दिखाई थी। दिस इज द अप्रोच। यहाँ पर आपको रोट लर्निंग खत्म करना है। यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड ज्यादा यूज हो रहा है या लॉजिकल गेस, आपका लॉजिकल गेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि इफ आई एम स्टडिंग हिस्ट्री एंड आई हैव स्टडीड बुक्स एंड ऑथर्स, am I able to solve if a question is asked on matching the following. मैंने रट तो लिया, पर अगर मैच द फॉलोइंग आएगा तो मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जाऊंगा। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। एंड दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं। सिलेबस को लिंक नहीं करते हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स को तो भूल ही जाते हैं। वी आर गिविंग अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, वी आर इग्नोरिंग हाउ क्वेश्चंस हैव बीन सेट। पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है, सम स्टूडेंट से 2024 में ही पैटर्न चेंज हुआ, बट द पैटर्न चेंज वाज हैपनिंग सिंस 2019। वो हम देखते नहीं है, नोटिस नहीं करते, रोट लर्निंग करने लगते हैं। दैट इज वाई आर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्वेश्चन लोअर्स डाउन, और हम वहां पर गलतियां कर देते हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ यू आर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। ओके, तो ये चीजें आप अपने प्रैक्टिस में पीवाईक्यू के एनालिसिस में लेकर आओ, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आपको कम से कम अपने बारे में तो समझ आए कि वेयर आई एम लैकिंग और वेयर आई एम स्ट्रॉन्ग। 99% students approaching me, they don't know where their strength lies, what is their weakness, उनको यही नहीं पता होता। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, चलो, नाउ इफ यू हैव एनी अदर डाउट आई विल मेक अ सेशन ऑन इट, बट यू हैव टू टेल मी अबाउट इट। मुझे बताना कि ये प्रॉब्लम है, इस पे आप ये सोल्यूशन लेकर आओ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।